Professor Gantosh Kumar Jha from ERSD College, convener Dr. Vinita Tuli ma'am, co-convener Dr. Anjali Gupta ma'am, and all the participants to the third session of the day. We have with us Mr. Nimish Kapoor sir, Senior Scientist and Head, Science, Film Division and Publication Division, Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India. Nimish Kapoor sir is a science communicator, writer, film curator, television programmer, team builder. Mr. Nimish Kapoor sir is working in Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, from last 17 years. At present, as scientist E, as a principal scientist, he is heading the Science Film Division, Publication Division, and India Science Wire, Science News, and Feature Service. He is a certified Google News Initiative trainer on fact verification. He is associated with the planning and execution of national and international science film festivals of India, flagship events of Vigyan Prasar, initiated training programs, series of workshops and appreciation courses on science communication, science film making to promote the culture of science communication, and science films in Indian universities, mass communication institutes, and film schools. He is associated as member, Board of Studies, guest faculty of science communication with various universities, media schools. He is an expert member of various committees, decision-making bodies of Public Health Film Society, UK, UNICEF, Doordarshan, CIT, NCRT, CMCA, MHRD, CSG, CMS, Vatavaran, and NSCM, etc. He has been recipient of numerous awards in science communication. He has been associated as television programmer, producer, researcher, and correspondent with various television channels and media houses like Enadu Network, Ramoji Film City, Hyderabad, Z Network, Discovery Channel, Doordarshan, and All India Radio during 1977 to 2004. He'll be delivering his lecture on science documentaries, effective tools of science communication for inculcating scientific temper. Sir, we are honored to have you with us, sir. Please, can start the proceedings. Thank you, sir, and I am delighted to be here. मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे committees का organizing committee from Atmaram Sanatan Dharma College, University of Delhi, and Ministry of Education, Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Training, and Teaching Learning Center, Ramanujan College. Thank you to connect me with this well learned जहाँ पर अध्यापकों से बात करनी होती है तो बहुत संभल के बोलना होता है और बहुत सोच के बोलना होता है कि हम क्या और किससे बात करने जा रहे हैं। सिनेमा, समाज और शिक्षा, सिनेमा, सोसाइटी एंड एजुकेशन बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा विषय है जिस पर हम आज यहाँ बात करेंगे। एक्चुअली जैसा मेरा परिचय दिया गया, आई एम ए साइंटिस्ट एंड साइंस कम्युनिकेटर फ्रॉम लास्ट 17 years, and before that I was a filmmaker, TV programmer associated with various TV channels including Ramoji Film City, Hyderabad, and last 17 years I am dealing with science and communication, and Vigyan Prasar is the premier institute of science communication in the country under the Ministry of Science and Technology, Government of India. And before discussing on science film and their its impact on society and all, I would like to share that we organize two science film festival, and these are the only science film festivals in the country. One is national and one is international, Science Film Festival of India, and I am happy to share that the star of the millennium, Amitabh Bachchan ji, and all legendary filmmakers like Shekhar Kapoor and Anupam Kher and Amol Palekar ji and Mike Pandey, our wildlife filmmaker, and many others, and including top scientists, teachers, mass communicators, journalists, all are associated with this film festival. And today I prepare my talk based on the award-winning films from our science film festivals, and how these films, are impacting to our society. तो मैं presentation शुरू करूँ उससे पहले एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है एक फिल्म की, जो फिल्म मैं आपको दिखाऊंगा अभी। यहाँ पर जो मेरा विषय है कि कैसे जो साइंस की फिल्में हैं
खास तौर पर देश में जो साइंस की फिल्में बन रही हैं वो फिक्शन ना के बराबर है, क्योंकि फिक्शन में पैसा ज्यादा खर्च होता है और हमारे पास फिक्शन, साइंस फिक्शन को देखने वाले व्यूअर्स बहुत कम हैं। हम लोग देश में साइंस डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स बहुत बनाते हैं, जिसका व्यूअर्स जितना होना चाहिए उतना नहीं है। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने एक टीवी चैनल लॉन्च किया है 2 साल पहले, इंडिया साइंस के नाम से। ये टीवी चैनल आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, आप नोट कर लें, इंडिया साइंस। दिस इज ओटीटी चैनल। आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे या जियो ऐप में जाएंगे और आप इंडिया साइंस के नाम से वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हम और हमारे जो फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं देश में, अलग-अलग पार्ट्स में होते हैं, उनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स, और जैसा मैंने बताया उसमें अभी तक जो एक पब्लिक परसेप्शन है था कि साइंस इज फॉर साइंटिस्ट, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। साइंस जो है वो टेस्ट ट्यूब का विषय है, केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैब का विषय है, या बीएससी और एमएससी का विषय है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस परसेप्शन को हम चेंज करें। तो अपनी शुरुआत में कुछ स्लाइड से करूंगा, और उससे पहले जो मैं कहानी की आपको बात किया था वो सुना दूं, फिर मैं स्लाइड पे आऊंगा, फिर कुछ फिल्में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे याद आता है 2016 का वो वर्ष था, और श्याम बेनेगल जो एक मशहूर फिल्म निर्माता हैं, जिनके बारे में मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबू श्याम बेनेगल मुंबई में हमारे जूरी चेयरमैन थे नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के। एक फिल्म कंपटीशन में आई जो हमारे फिल्म फेस्टिवल में 4 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है, दूसरी फिल्म की कैटेगरी होती है फिल्म मेड बाय स्मॉल। Am I audible? Yes, Yes, sir. Yes. you're audible, but your video is not coming. Internet glitch is there, I think. So. Please, you can continue, sir. Yeah, sir, continue. Please Should continue. I? अच्छा, आपकी आवाज मेरे पास ब्रेक होके आ रही है, तो मेरी आवाज वहां क्लियर पहुंच रही है कि नहीं? सर, आपकी आवाज पहुंच रही है, सर, यू कैन कंटिन्यू। तो 2016 की बात है। जी, श्याम बेनेगल साहब हमारे जूरी चेयरमैन थे, और एक कैटेगरी हमारी होती है जिसमें हम जो हमारा फिल्म मेकर है, जो प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस में काम करता है, उन्होंने एक फिल्म सबमिट की थी, सेविंग दी सेवियर। अब वो फिल्म कश्मीर के एक जगह है बांदीपोरा, जिसमें वुलार लेक है, आप जानते होंगे। वुलार लेक में टूरिस्ट जाते हैं और बहुत सारा कचरा करके चले आते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन वहां बढ़ता जा रहा है, और मछलियां कम होती जा रही हैं, और वुलार लेक का दायरा कम होता जा रहा है, सीमित होता जा रहा है। ये फिल्म जब उन्होंने बनाई तो हमारे जूरी मीटिंग में कुछ साइंटिस्ट भी होते हैं, कुछ फिल्म मेकर्स भी होते हैं, चेयर्ड बाय श्याम बेनेगल। तो फिल्म हमारे फिल्म मेकर्स को, श्याम बाबू को बहुत पसंद आई, और उस फिल्म को अवार्ड भी मिला। लेकिन कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इतना जरूर कहा कि इसमें कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं दिखाया। तो मेरा कहने का ये मतलब था, अब ये कहानी पूरी नहीं हुई है। तो उस फिल्म को अवार्ड, हमारा गोल्डन अवार्ड मिला। वुलार लेक थी, वहां के पोल्यूशन के बारे में बातें थी, उसका वुलार लेक का दायरा कम हो रहा है, उसमें पोल्यूशन हो रहा है, मछलियां मर रही हैं, और उस फिल्म में एक ह्यूमन स्टोरी थी। ह्यूमन स्टोरी में एक बच्चा एक रैक पिकर कचरा बीनने जाता है वुलार लेक में, और वो कचरा बीन के जो पैसा मिलता है उस कचरे से वो अपनी माँ को देता है, क्योंकि उसके फादर ने, और उसके घर में अन भी एक है, वो इस तरह से अपने परिवार में कुछ आर्थिक मदद करता है। लेकिन उसके साथ में वो बच्चा जब वुलार लेक से कचरा बीनता है, तो वहां मछलियों को भी एक नई जिंदगी मिलती है। जो टूरिस्ट वहां कचरा फेंक के आते थे, वो जब उठा लेता है, और वो झील भी साफ हो रही है, वो लेक भी साफ हो रही है। तो ये एक छोटा सा मैसेज, एक फैक्ट दिए, फैक्चुअल चीजें दिखाई, तो हमारे दर्शक को ये समझाने की कोशिश की गई इस फिल्म में कि देखिए ये फैक्ट है, ये फैक्चुअल फिगर्स हैं
कि वुलार लेक का पानी कम हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और इस तरह से एक बच्चा है जो अपने अफोर्ड करके वो गंदगी वहां से बीनता है और वो बाजार में बेच के आता है। तो कैसे उसने ह्यूमन एंगल और फैक्ट को आपस में मर्ज किया और कश्मीर की खूबसूरत वादियों के संग वो फिल्म बनाई। तो यहाँ पर उस फिल्म को जब अवार्ड मिला तो यहीं पर ये कहानी खत्म नहीं होती। उसके बाद जलालुद्दीन बाबा नाम है उस फिल्म मेकर का, आप गूगल कर सकते हैं जलालुद्दीन बाबा। तो जलालुद्दीन ने ये फिल्में पूरी अपनी फिल्म पूरी दुनिया में भेजना शुरू की, अलग-अलग फिल्म फेस्टिवल में भेजा, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने उस फिल्म को अडॉप्ट कर लिया। ये अवार्ड विनिंग फिल्म जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी, हमारे फेस्टिवल से निकली थी, उसको यूएन ने अडॉप्ट कर लिया पूरी दुनिया में दिखाने के लिए कि एक अच्छा मैसेज है इसमें। पॉल्यूशन की बातें हो रही हैं और एक वुलार लेक की बात हो रही है। उसके बाद ये खबर मोदी जी के पास भी आई और मन की बात में उन्होंने उसको कवर किया करीब 15 मिनट। और जो बच्चा जो रैक पिकर कभी उस जगह से बाहर नहीं गया था, वो आज जम्मू कश्मीर का स्वच्छता अभियान का, सफाई अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है और पूरी दुनिया में, देश में वो अलग-अलग जगहों पर अपनी बात बताता है, हवाई यात्राएँ भी करता है। तो जिस तरह से कैसे एक सोसाइटी तक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आम भाषा में, विजुअल के साथ में साइंस, एनवायरनमेंट का मैसेज, फैक्ट, फिगर सब कुछ परोसा गया। तो ये तो एक फ़िल्म की कहानी थी। इसके अलावा बहुत सारी फ़िल्में हैं जो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आने वाले 1 घंटे में दिखाऊँ। पूरी फ़िल्म अगर ना भी दिखा पाऊँगा तो मैं आपको उस फ़िल्म का यूट्यूब में अवेलेबल है बहुत सी फ़िल्में, आप उसको भी देख सकते हैं। और गुज़ारिश एक और भी है, जो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। हमने स्कूलों में एक्सपेरिमेंट किया और ये कॉलेजेस में भी हम कर सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? टीचिंग विद सिनेमा, सिनेमा इन द क्लासरूम। अगर आप इन फ़िल्मों को ये फ़िल्में आप हमसे विज्ञान प्रसार से ले सकते हैं। हमारे पास स्क्रीनिंग राइट्स हैं, जो अवार्ड विनिंग फ़िल्में हैं, उनको हम एकेडमिक पर्पज़ के लिए पूरे देश में दिखाते हैं। आप अपने क्लासरूम में इन फ़िल्मों को दिखाएँगे, तो अगर आप पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, पानी, एनर्जी, जलवायु से लेके एग्रीकल्चर और पेड़-पौधों की बात करेंगे, तो बहुत इफेक्टिव तरीके से आपकी बात आपके बच्चों को समझ में आएगी। और ये भी इस बात की भी मैं एकदम यहाँ पर ये करता हूँ कि ये साइंस जो है, केवल साइंस टीचर्स की फ़िल्मों के लिए साइंस फ़िल्में होती हैं। अगर आप हिंदी या कॉमर्स भी पढ़ाते हैं, आप मास कम्युनिकेशन या इतिहास पढ़ाते हैं, तब भी आप इन फ़िल्मों को एन्जॉय करें और बच्चों को इसमें बच्चों को दिखाएँ, क्योंकि ये फ़िल्में देखने के लिए बनी हैं। बहुत सी फ़िल्में यूट्यूब में हैं, कुछ फ़िल्में पैसा कमाने के उद्देश्य से होती हैं, तो फ़िल्म मेकर कहता है साहब इसको आप यूट्यूब में मत डालिए। तो वो हमारे पास हैं, हम आपको दे सकते हैं। तो ऐसी तमाम एक बहुत बड़ी रिपॉज़िटरी है देश की, जो विज्ञान प्रसार के पास अवेलेबल है। आने वाले समय में हम विद द परमिशन ऑफ फ़िल्म मेकर इसको हम वेब पोर्टल के थ्रू भी आप तक पहुँचाने वाले हैं विद इन अ ईयर। तो अभी मैं अपनी बात को एक प्रेज़ेंटेशन है मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर स्क्रीन शेयर राइट्स मेरे पास हैं, तो मैं एक फ़िल्म आपको ये ज़रूर दिखाना चाहूँगा और फिर मैं अपनी बात आगे Yes, sir, you can share. यस सर, आपको बढ़ाऊँगा। वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, शेयर कर सकते हैं। शेयर स्क्रीन पे मैंने क्लिक किया है। मिनट। फ़िल्म का ऑडियो मिल रहा है आपको? अभी म्यूज़िक आ रही है, इट इज़ ऑडिबल? नो सर, नॉट येट। इट इज स्टिल शेयरिंग। सर एक बार फिर से शेयर करें इसको बंद करके। तो अभी? हाँ सर, शेयरिंग स्टॉप करके एक बार रीशेयर कर सकते हैं सर?
नहीं, actually there is some option for शेयरिंग को स्टॉप शेयरिंग करके रीशेयर कर जी। सकते हैं एक बार? नहीं, वो तो मैं रीशेयर कर दूंगा, बट देयर इज वन ऑप्शन फॉर बेटर ऑडियो ऑडियो विजुअल के लिए एक ऑप्शन है इसमें, वही सर्च कर रहा हूँ। एनीवे मैं Amit sir, please assist if you can. Yes, sir, now it is visible, sir. अभी ऑडियो आ रही है? सर अब विजिबल है सर अभी। विजिबल है सर। इसको सर मिनिमाइज करें आप और वीडियो को डिस्प्ले करें, बिकॉज योर फोल्डर इज ओपन। नहीं, अभी आपके सामने वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं सर, आप इसको मिनिमाइज करिए। आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आपका फोल्डर आ रहा है। मींस फोल्डर में जो वीडियोस हैं वो दिख रहे हैं, उनकी फाइल्स। अब वीडियो को शेयर करिए। व्हेन विल शेयर द स्क्रीन, सर पहले वीडियो ऑन कर लीजिए और फिर इसके बाद शेयर करते वक्त केवल वीडियो को शेयर करिए एंड उसको प्ले करिए। यस, मैंने वही किया है। अब नाउ विजिबल सर। अब विजिबल है ऑडियो ऑडियो का इशू आ रहा है। ऑडियो देखिए सर, प्ले करें। ऑडियो है, मैंने प्ले किया। इट्स स्टिल सर नॉट रनिंग। ऑडियो नहीं आ रहा सर। वीडियो लेट मी जरा मैं अपने एंड पे चेक कर लेता हूँ, जस्ट एक मिनट, क्योंकि यहाँ से तो मेरा सब सेटिंग बराबर है। 1 मिनट। चंदन, इसको जरा बोला ना विपिन रविंद्र, ये ऑडियो नहीं आ रहा है मेरा जूम में। विपिन आ रहा है सामने, बोला। स्क्रीन शेयरिंग पे इसका ऑडियो नहीं जा रहा है वहां पर। सर हाँ जी सर, वीडियो ओपन कर लीजिए एक बार, उसको प्ले मत करिए और उसके बाद व्हेन विल शेयर द स्क्रीन ऑप्टिमाइज हटा दो। एक मिनट सर, 1 मिनट सर। शेयर साउंड क्लिक कर दिया मैंने, और ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो क्लिप तो नहीं करना है, ये हटा दें इसको। हाँ ठीक है, शेयर साउंड से साउंड आना चाहिए ना। अभी ऑडियो आ रहा है सर? यस सर, ऑडियो आ रहा है। आ गया, ओके। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप काइंडली मुझे बता दें, मैं दोबारा से इसको शुरू कर लूँ। Yasrayadun Motwalan Sidantai Sadadun Zanasui Yasrayadun Ulpariyat Amhar Sari Tum Chiyasat
siribosi emutata sejantai sadun zanyasi yas rayadun. Life and death are the two sides of the same coin. What links them are stories. Some are beautiful, some romantic, and some heartbreaking. One such story is of a 15-year-old Billa and his companion, the Wuller. Ginana şuz bu kuni saat agar ginum te gindo. Agar na to tele şuz basa dohas eti deryavsi mes. Un saçın banayni ki tam saçı pe insan varya bardaş karna. Agar na bardaş kare insan barabar patva avas pavun. Billa lost his father to a life-threatening disease. Orphaned at the tender age of 9, Billa never saw life in its beautiful form. For him, it was all about pain and responsibilities greater than his age. Mein na Bilal Ahmad Dar, Mulis na Mohammad Ramzan Dar, Majashum na Magli. Boz osus paran, patas mudum mol. Nemis osus zang warm, patas mudum so. Patas pium lakchar si yapar mos janin. Patas pium muaj benza paknavni. He had to leave school and his studies to support his family. Although his mother tried her best, but she just couldn't make the ends meet. Iman was no dood bepa, iman was no kientja, kien was no iman bukjakara. Rapi hatas ja zatos timas imni bachanla, bukjakara. Kien mi has pakne pana im bach, udaya roon kara, udaya chata ni misna, mission kara kiba palak no me bach. Mi has poel patim aju ya sa na jun chata misna. Biyaka kim bach poel. Manas hek no kunjai kai. गरीबी वारिया मुश्किल चीज ये वारिया गरीबी गई मज अगर न खमो तो कहें छप कर बेहमो गर छप दाम कर मगर वह हम साइन की मगर क्या करो लकटिस बचस सह हेक वनित बह कर बर्दाश्त बह हेक बह अगर न कहें तो खम बह कर बर्दाश्त मगर हम बे लकट बेन छम सह हेक न बर्दाश्त कर बह हेक वारिया बर्दाश्त कर मगर बर्दाश्त कर अगर न बर्दाश्त करो तो अहन वारिया फिर फाक वाक लोगमुत ईद दो सारे कॉकर रन सिन चोट मसरंगन चोट ते गरीबी वो कंस वोन दोपस असल खमा कह ना खमा पानस अहन वारिया गसान तम सत गसान इंसानस वारिया कह पत बह वन बेन करो सा पत कह सा पोस बन तो दिमो अनो फिराक यजारा कह तमिश मजबूरी पेवान अगर न मे कहें तो लगित मोन सहल कोर मोहन पलो आसान कहें सा मेन बेन तमन पलो आसान कहें सारे नल पलो लगित ईज दो पे दपान खुदाया अन कहें गरस मज सलम कह सारे पलो लगित नई पलो प्रण पता गसान वारिया मुश्किल तथ मज Billa scavenges the lake daily on his boat for plastic and trash. He sells whatever he collects and feeds his family. It's ironic how the plastic that pollutes and chokes the Wuller turns into a savior for Billa. बदल टिप खन विप खन तलान
करान जमा लगावन पे साइडस अच्छा पत क्या करना साइडस थी गाड़ी मस पे बरन पत खाला गार त कना चलान कि ओदका पोदका छा रुपये दा यमा रपी दह मिलान अम सि मगर गंदगी तो वोथान चवान त्रेश तवे तमी मूजूब बहुत वन साफ गई दरियाव यह त्रेश चवान चाय बनावान बत रनान. For Billa and Wooler, it's a symbiotic relationship. Billa, at his own level, is protecting the Wooler, and in return, he gets his much needed earning. Billa had a great aptitude for studies, but without school fees, it was all a waste. So he left the school and moved on. Billa found a hope in Wooler and hopped on a new journey. बहुत पान गवर्नमेंट स्कूल पे मोज वोज मजूर करान तो पान मोल हपर कि तम कर मजूर तो पान तो पे मूद पे पे मे पे सलम कि प्रेस पे पे मे गरिकन पे पकन पे पे मे गुर वुर यप सलम कि तार पे पे मे पे बार पे वो मे बह त्रावन तो पे त्रो मे अथी वजह पे ना बह वन तो पान पे फीस लगा 900 रपये पे त्रो अमे मूजूब पे मिल अमिस तमी मूजूब गई प्रॉब्लम पे त्रो पे बह दिन रपये 10 ये पक अस तो घर. Mowgli, Billa's mother, worked as a maid, did menial labor and whatever she could to support her children, but it was never enough. घर काम करान यह दस वस छलान अत जमींदारन बे वोर वोपरावान पलव छलान किचन छलान कुछ छलान ये मजूर कर. मोज दोस मजूर तमिस अथन खसम हट वट खसम अथन दोस पे इंसानस पन कह. Billa couldn't bear his mother's misery and desperation. He decided to share her burden. His first try to earn livelihood was at a local auto mechanic shop. But there he needed to learn the trade first before he could start earning. He needed time and patience, which were both alien entities for him. मजूर मूजूब हेत मे मजूर कर तम किताब क्या बैग वेग इथे कन दम तुम गस मजूर कहें बह कर पाने मज लकुट बच्चे मजूर कर यह कर प्रेस पीसनस घर बेन कर दपस मत ग मजूर बह कर अगर मे खबर क्या पे सा पा अमिस दोप मोज बह गस कुन जाए पे सह मे दिवान नेरन कह बेन चीज अना अमिस दपान बह पक पान यथ नून मज बेन माज गई बेन गई आज वक्त जमान खराब सोचन समझन वो लड़को अमिस रो तवे नत त्राय नी कह. असल पगह बेन वाता मोज वाता रपये 10 जीन असल पे वाता बेन मोज रजील छा नटखट छा रजील न असल क्या वाता बेन क्या वाता ये चीज लाग सह चीज अनान बे क्या कर अनस रपये 10 रपये हाथ अमिस बेन हुमिस बेन मे माज अनान तो दिवान दपान हाथ मोल मुज फर्क यस मोल मुज मरान तस ग तम सुद इंसान मलिस माज सत्य सेपत दह सेपत इत पे मोल मुज रपये 10 तो लागान वातान असल पे असल पे मिलान तो हुत पे ग थोड़ा प्रॉब्लम इत पे कि मोल मुज गई जरूरी पे किस्मत क्या कर. बस तम शौक पूर करान असल रचान कुन सात रपये 10 मंगम कुन सात 20 रपये मंगम बस 30 दिवान बस वन यह बेन ग सुबह वन दपन यह बोझ मे खतरनाक तस बह तुम मोजूब मजूरी करान यप.
Billa keeps collecting plastic and polythene and garbage from the Wooler banks and marshy lands, which he finds in abundance for his livelihood. But what's job for him might just be the only hope left for the struggling Wooler. I'm such a sugar and Jasper's Sapoy at Warras. Agar Butler hot tolo. I'm such a Nespo Jarashing Chalana tops. Nespo, my Butler should Dava Asan. Desperate and exhausted, Billa found refuge with Wooler. Wooler was his father's source of livelihood, the savior of his family. And once again, it came to the rescue. Wooler offers its bounties to tens of thousands of people living on its banks. So how could it disappoint Billa? Mesh Moy such Asan Dohas Bicher Mozir, Mrs. Asanya Poir, Timsashina Mogli, Bushes Asanya Poir Dohas, Rapi Hot Geneva, Rapi Ponsa Geneva, Mushu the direct Garican Haval Karan. The Mushu Moy Asan Apoir Mozir, Sichit Mish Asa Bichar, Gos Asan Kadan, Poor Pravan, Wurs Asan White Tour Karan. Salim ke shikaran to Zena Sharapi da, which is Japurki Zenan, Beshi Garas Varas Apazas Tawan. Regardless of all the hardships, Billa keeps his family pot boiling and faces his fate every day. Same way the Wooler is fighting to survive man-made destruction. Billa sees the reflection of his misery in the muddy waters of Wooler and finds solace in its arms. Plastic sombrava, bottle sombrava, or see my anagad. It was Corimni Pergoza, Mucasos Pidis. Niltas Bar Pew, Garux cat fighting. Why is the very as give me no Shalaman? Was the upper Mersu Urakwasan no Shalaman Chavan? Thirsty, Rapidos Jenna, most of the Kalangaras. The one of the Garican. So the soon moon also Salim Kana, Palan is from Garik. He is trying his best to save the grandeur of Asia's largest freshwater lake by cleansing it of its disease, the trash scattered in and around the lake. Billa finds Wooler as helpless as himself and cares for it like his family. Behai Kunzat Muzirgati, Gertrakani, Kunshi Naiket. I did not choose to ski. Patos Karakun, Patos Muzirgasa, Tar Dimaiman, Gopan Valiant, or Siwako Makana Zenos Rata Zuzutrita, was the Mamia, the most high. Moju throw another Benny Gaspar and Benz Hechanamaki, Bichari. The Palo Shaknikian, Vardi Shaknikian, Salim Ki, Mod Board Gachakos, Suship Pawan, Salim Ki Anu. Nan bench weekend Paran Pagagas and Baji, Kondar Shukaran, Laking Guzari. Guzara, I say Kondar, Kondar, Patkaran Benin Kondar Wonder, Asal Push. That was a Gopanasa, Guiras, I can't find. Shinas action put Kuhin to Mandalan or Europe. O Kunchanda and some was Miniki, and Mother was on Jam died. Treshin Mojo. Made us go Maholo Selim Kara. I got Chamo. The Ajasan died the boss, she got some put inside Bamar. I got a trash chamo. She can't get trash.
बस न शाम तान अगर खोतुस घर अगर न तेल खोफ्तन तान तो ये तेज बस तार दिवान बहुत वन कह निवान दोहस कहन आमुत बहुत वन कह गई दोहस यून यह कहन आमुत दोहस कुन सात उमत निवान ये मे कुन सात अगर कह आव योर आव नाय वोल सह हेक लैत दब 4 दब 5 न नाव क्या नीर तम सात मुश्किल गसान या फटवान आबस या फटवान खोर पे या सान दरियावस मज पे पेवान खसन इंसानस कुन पे पे माफी शफी हेन तो नाय दाय मजबूर बे गरस वरस तम नश तो मे गुजारा कह सलम कि कह सवार ये दपान बह खसन चान नाय कह तो यप गंद अप गुपन मोमुत गुर मोमुत तत गसान पे गंद इंसानस पे पे थोप दिन ये त्रेश चवान यह गंदगी चवान Nimish sir. Some connectivity issue, Shankar. Nimish sir, would you like to share something? Ma'am, if you excuse, can I call and ask? Yes, yes, please call. Okay. I can see him. He's there, Shankar. Dr. Shankar? Sir, Yes, he's okay. Nimish Yeah, sir. actually, I have shared the film, but I don't know. Actually, there was a small 5-7 minute
part was there as part 2, but anyway, तो ओवरऑल फिल्म जो है वो आपने देखी, और इस फिल्म में जो ऑब्जेक्टिव था उस फिल्म का वो यही था कि वो वुलार लेक के बारे में आपको बताना था, और उस फिल्म मेकर ने वो ह्यूमन एंगल स्टोरी, वो रैट पिकर और वो एनवायरनमेंट, वो साइंस, वो बायोलॉजी, वो फिश, वो जो चैलेंजेस हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग के, वो सारी चीजें उसने बता दी। और अगर इसी फिल्म को वो केवल और केवल फैक्ट और फिगर तो होता ही है, क्योंकि कैसे फैक्ट और फिगर को आपको परोसना है एक फिल्म में, ये बखूबी इस फिल्म में आपने देखा, जो फिल्म मेकर ने आपको दिखाया, और उसमें जो ह्यूमन एंगल स्टोरी उसने जोड़ी, तो एक कहानी के तौर पे वो फिल्म हमें समझ में आई। तो ये एक बेहतरीन फिल्म थी, और जिसको पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है थ्रू यूएन एंड वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स. So now I'm sharing one presentation to just explain and explore about science communication through films. जो हम मैंडेट लेके चल रहे हैं, इन फिल्मों को हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. वी हैव जो OTT चैनल इंडिया साइंस आपने नाम नोट किया है, उसमें भी वी आर स्पेंडिंग crores of rupees to make good films, good videos on science, environment, health, फॉर पब्लिक कम्युनिकेशन. आम आदमी की समझ में आने लायक चीजें बने, उसमें आपका भी हम चाहेंगे कि भागीदारी हो, पार्टनरशिप हो. और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है मैंने बनाया है जस्ट टू एक्सप्लेन अबाउट साइंस कम्युनिकेशन, जो मैं यहाँ पर शेयर करूंगा. This is my presentation, Science Documentary is Effective Tool of Science Communication. तो हम जो आपने एक फिल्म देखी, इसके अलावा 3-4 फिल्में और हैं जो मैं कुछ 5-10 मिनट के लिए आपको वो भी दिखाऊंगा, जो कुछ YouTube पे भी अवेलेबल हैं. तो ओवरऑल जो बात है कि वाई साइंस कम्युनिकेशन, हम साइंस कम्युनिकेशन की बात क्यों कर रहे हैं. ब्रिजिंग द गैप बिटवीन साइंस एंड सोसाइटी विद इंफोटेनमेंट, इनकलकेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, लोगों में साइंटिफिक टेम्पर जगे. और मुझे लगता है कि फिल्म मीडिया एक ऐसा मीडिया है जिसमें इनकम टैक्स पेयर्स मनी में से जो साइंटिस्ट काम कर रहा है देश का, जो देश में हजारों लैब हैं, और ये कोविड में आपने 1-1.5 साल में देख लिया अच्छी तरीके से कि किस तरह से आज तक में जो प्राइम टाइम एंकर हैं श्वेता सिंह, उन्होंने लैंसेट रिसर्च जर्नल्स को भी कवर किया है. तो हर एक चैनल में, हर एक न्यूज़पेपर में, वो चाहे रवीश कुमार हो, चाहे आज तक हो या कोई और चैनल हो, हर एक चैनल में कोविड से जुड़े तमाम रिसर्च जर्नल्स, तमाम डॉक्टर्स, तमाम लैब्स को कवर किया गया है. तो ये एक इशारा है, अगर यहाँ पर इस आपके जो पार्टिसिपेंट हैं, इसमें बहुत सारे मास कम्युनिकेशन के टीचर्स भी आप होंगे, और अगर आप मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई अपने बच्चों को कराते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कॉम पढ़ाते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, हमने एक पायलट लेवल पे जामिया मिलिया इस्लामिया MCRC में 2018 में एक कोर्स रन किया था अंडर दी CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें करीब 20-25 क्लास हुई थी. वीकेंड क्लासेस थे, संडे सैटरडे को, या कोई भी एक दिन हो सकते हैं. तो वो कोर्सेज हम चाहेंगे कि आपके साथ हम करें. हमारे पास फिल्म मेकर्स हैं, फिल्म है, साइंस कम्युनिकेटर्स हैं, साइंस राइटर्स हैं, जो बच्चों को बहुत सारी बातें, क्योंकि ये मुश्किल है सर कि हमारे कॉलेजेस में हमारे वो बच्चे मास कॉम क्यों हो या इतिहास पढ़ते हो या कॉमर्स पढ़ते हो, उनको साइंस कम्युनिकेशन का एक इंट्रोडक्शन देना जरूरी है. क्योंकि अगर हम समाज की बात करें और हम सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो ऑडियो विजुअल बहुत बड़ा बजट हर साल खर्च होता है हमारी मिनिस्ट्रीज का, हमारे प्रोडक्शन हाउसेस का, जिसमें अगर हम बॉलीवुड की बात के अलग से इतर अगर हम बात करें, तो अगर हम दिल्ली की इंडस्ट्री और हमारे बहुत सारे स्टेट कैपिटल्स में जो बजट खर्च होता है तो सिनेमा पर, ऑडियो विजुअल पर, तो बहुत बड़ा करोड़ों का बजट है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और हेल्थ में जाता है. अब हमारे मास कम्युनिकेशन के कॉलेजेस में बच्चा राजनीति, खेल कूद और बॉलीवुड और सिनेमा से लेके बहुत सारे स्पेशलाइजेशन करता है, लेकिन उसको साइंस और हेल्थ और इन्वायरमेंट के कम्युनिकेशन की पढ़ाई शायद नहीं कराई जाती, उस पर
ना तो यूजीसी की तरफ से कोई बहुत ज्यादा पहल हो पाई है और ना ही हमारे कॉलेज की तरफ से हो पाई है, क्योंकि अभी तक साइंस को पिछले 25 सालों से जो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से देखता आ रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में हमारे मिनिस्ट्री ने कोर्सेज शुरू भी किए जो कुछ कारणों से बंद भी हो गए। तो जो फेल्योर हुआ वो क्यों बंद हुए वो भी हमको कारण पता है। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि नए सिरे से हम इन कम्युनिकेशन कोर्सेज को रन करें, वो सर्टिफिकेट कोर्सेज हो वो और ऑडियो विजुअल के थ्रू हो, जो हम आज सिनेमा और समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बजट, तो हजारों की तादाद में फिल्में बन रही हैं। हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स हैं जो डिस्कवरी के लिए भी बनाते हैं और जो हमारी मिनिस्ट्रीज के लिए भी फिल्म बनाते हैं, और वो पंचायत और रूरल डेवलपमेंट पे भी फिल्में बनाते हैं। अल्टीमेटली जो एम है वो यही है कि हमारे संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटी भी है, लिखा हुआ है साफ साफ कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू इनकलकेट साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो साइंटिफिक टेम्पर की बात संविधान में भी लिखी हुई है, और ये बात अगर आपको 25 साल पहले याद हो कि गणेश जी ने पूरे देश में दूध पिया था, तब बीबीसी हुआ करता था और एक खबर बहुत तेजी से फैल गई थी, गणेश जी पूरे देश में दूध पी रहे हैं। और अभी भी कोविड काल में अगर आप देखें तो सैनिटाइजर से लोग नहा रहे हैं, सैनिटाइजर को लोग पी रहे हैं। अभी 1.5 साल पहले खबर आई थी कि इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ और उसमें से मैगी नूडल्स निकाले जा रहे हैं। तो वो ऑडियो विजुअल क्लिप था, जिसमें से जब उसकी पुष्टि की गई, वेरीफाई किया गया, तो पता चला कि वो मैगी या चाउमीन नहीं था, वो पेट के कीड़े थे, जो पेट में हमारे राउंड वर्म्स होते हैं, एस्केरिस होते हैं, वो पेट के कीड़ों, इंटेस्टाइन का ऑपरेशन था जिसमें पेट के कीड़े निकाले जा रहे थे। तो लेकिन स्कूलों में बैन हो गया, प्रिंसिपल ने वो वीडियो देख के बैन कर दिया कि सर मैगी और चाउमीन नहीं लाना है बच्चों को। तो बहुत सारे समस्याएं हैं देश में, और जो साइंटिफिक टेम्पर की अगर आप डेफिनेशन भी देखेंगे हमारे विकिपीडिया में, गूगल में, तो एक लॉजिकल रैशनल थिंकिंग की बात करता है, जिसकी बहुत जरूरत है। जरूरत क्यों है ये? क्योंकि पुराने जमाने में जब लोग पूछते थे कि भाई दिन और रात क्यों होते हैं, तो जवाब मिलता था कि दिन और रात ईश्वर अल्लाह दिन और रात करते हैं। लेकिन जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि दिन और रात कैसे होते हैं, तब हमको ये जवाब मिला कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ये दिन और रात होते हैं। तो कैसे का सवाल बहुत जरूरी है। जो फिल्में होती हैं जो इन्वायरमेंट की हैं, साइंस की हैं, कोविड की हैं, कोविड की वैक्सीनेशन की हैं। अब मजेदार बात यह है कि अगर हम कोविड की बात करें तो अगर हम अपने ये नहीं जानते कि भाई कोरोना वायरस का आकार कितना होता है, ये जो अदृश्य वायरस है इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अब ये अदृश्य जो वायरस है ये 80 से 120 नैनोमीटर का होता है। अब 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर होता है 1 बिलियन ऑफ ए मीटर। 1 मीटर के आप 1 अरब, 1 बिलियन, 1 अरब टुकड़े करेंगे 1 मीटर के, तो जो 80 या 120 टुकड़े होंगे वो एक कोरोना वायरस होगा। और अगर आप इसी कोरोना वायरस को इमेजिन करें, आप एक ऐसे समझें इसको आप कि आपके सिर का एक जो बाल है उसकी मोटाई, आपके सिर के बाल की, एक बाल की मोटाई में अगर आप उसको फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा करेंगे तो एक कोरोना वायरस का आकार आपके एक स्मार्टफोन के बराबर होगा। मतलब ये कहा, तो इस तरह से आपको समझाने का मौका मिलता है अपने साइंस फिल्मों में। और जो हमारे साइंस लैब में हमारे साइंटिस्ट काम करते हैं, वो जो काम करते हैं वो क्यों और कैसे भी करते हैं कि ये समस्या क्यों है, ये कोविड क्यों है और एक कोरोना वायरस कैसे है। लेकिन जब साइंस की फिल्में बनती हैं, ऑडियो विजुअल से हम लोगों को समझाते हैं, तब हमको मौका मिलता है 7 Ws और YH में काम करने का। हम बताते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, व्हिच, टू whom एंड हाउ। हम किसके लिए फिल्म बना रहे हैं, कौन लोग हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, हु आर द साइंटिस्ट, हु आर, व्हिच आर द लैब्स, when they are doing, where they are doing, what they are doing। बहुत सारे 7 Ws और 1H की तलाश होती है और फैक्चुअल चीजें होती हैं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज को अपने अध्ययन में शामिल करते हैं आपके तो बहुत सारी चीजें उन बच्चों को फैक्चुअल तरीके से समझने में मदद मिलेगी। तो ये एक छोटी सी बात है जो मुझे कहनी थी। और जो साइंटिस्ट और जर्नलिस्ट का जो अंतर है, ये हम अक्सर अपने जर्नलिस्ट भाइयों को समझाते हैं कि भाई आप साइंटिस्ट को समझो और साइंटिस्ट आपको समझे। तो जो अंतर है वो यही है कि आप एक रिसर्च पेपर लिखने में लगाते हैं 2 साल अगर आप साइंटिस्ट हैं, और एक जर्नलिस्ट एक रिपोर्ट लिखने में या फिल्म बनाने में उसको लगते हैं 8 घंटे, 18 घंटे या 2 दिन मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। और जर्नलिस्ट या फिल्म मेकर बहुत तेजी से काम करता है क्योंकि उसकी डेडलाइन होती है। लेकिन एक साइंटिस्ट चाहकर भी तेजी से काम नहीं कर सकता। वैक्सीनेशन नहीं हो गया, वैक्सीन एक में नहीं बनी, वैक्सीन के लिए भी समय जितना चाहिए था उससे लगेगा। तो
एक्सपर्टीज जो एरिया है वो ये है, आइडिया और इंटरेस्टिंग आर्टिकल उसकी पारिभाषा है, लेकिन जो फिल्म मेकर है वो ये बताएगा कि साइंटिस्ट फाइंड जीन इज योर चाइल्ड एट रिस्क। तो वो इस तरह से कोशिश ये करते हैं हम कि जो 3 कल्चर है हमारे, वो अगर फिल्म इंटरेस्टेड हैं साइंस कम्युनिकेशन में, अगर आप लिखते हैं, आप फिल्में बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इन 3 कल्चर्स को अच्छे से समझें ताकि आप अपने ऑडियंस को अच्छे से समझ पाएं और समझा पाएं। पहला कल्चर है हमारा रिसर्चर, हमारा लैब, हमारा साइंटिस्ट। दूसरा कल्चर है हमारा कम्युनिकेशन का कल्चर, जिसमें फिल्म मेकर है, जर्नलिस्ट है, जिसमें टीआरपी है, जिसमें व्यूअरशिप है, जिसमें प्राइम टाइम है, जिसमें डेडलाइन है, जिसमें स्पेस है। और हमारा तीसरा कल्चर है हमारा पब्लिक, आम आदमी, जो कंज्यूम करता है, हमारी बात को समझता है। तो हम जिस भी थ्योरी पे काम कर रहे हैं अपने मीडिया चैनल में, वो चाहे बहुत सारी थ्योरी है, आप जानते होंगे, मैं उसकी बात नहीं करूंगा यहाँ पर। तो वो हमको अपने आदमी को, अपने लोगों को, अपने मासेस को समझना भी बहुत जरूरी है, तब हम उनको समझाएं। तो ये 3 कल्चर्स की समझ बहुत जरूरत है इसकी, और ये मुझे लगता है कि ये हर एक कम्युनिकेटर के लिए इसकी समझ बहुत जरूरत है, क्योंकि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने लोगों को, वो इंफॉर्मेशन का सोर्स कहीं ना कहीं से होगा। वो कोई लैब होगी, वो कोई ऑफिस होगा, वो कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होगा, और आप एक कम्युनिकेटर काम करते हैं, आपके कम्युनिकेशन की दुनिया है। और तीसरा आपका ऑडियंस, आपका पब्लिक, आपका मासेस, आपका ये। तो एक साइंस जो काम करता है, अगर आप एक रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे, अगर उसमें पहली लाइन हो सकती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर उसमें बहुत सारे रबी खरीफ की फसलों का जिक्र होगा, बारिश का जिक्र होगा, सूखे का जिक्र होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उसके बाद सपोर्टिंग आइडियाज होंगे। फिर हम अपने रिसर्च पेपर में कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। लेकिन आपके रिसर्च पेपर से अगर कोई फिल्म बनाई जाती है, खासतौर पर साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, जिसमें कुछ परिणाम निकल के सामने आया है, तो वो बॉटम जो अप अप्रोच है, बॉटम लाइन पहले आप बताते हैं कि इसमें क्या निकल के आया है। ये जो वैक्सीन बनी है, ये ऐसे ऐसे बनी है, इसमें ये चीजें हैं, ये ऐसे काम करती है। उसके बाद आप सपोर्टिंग डिटेल की बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा सा अंतर है जो साइंस के रिसर्च पेपर में और एक पब्लिक कम्युनिकेशन में साइंस के, थोड़ा सा आपको अंतर बताता है। हाउ साइंस एनवायरमेंट फिल्म प्ले रोल टू इनकलकेट साइंटिफिक टेम्पर। आपने देखा किस तरह से बिल्ला, एक छोटा सा बच्चा, जो एक रैक पिकर है, जिसने सारा कुछ आपको समझा दिया, और उस फिल्म मेकर ने आपको समझाने की कोशिश की। अगर कोई साइंस फिल्म मेकर कोई साइंस की फिल्में बनाता है, या आप भी कोई कम्युनिकेशन करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ से जुड़ा हुआ, तो समस्या क्या है सर? हम अपने ऑडियंस के हिसाब से अपना क्या करते हैं। अगर हम ये समझाने जाते हैं एक अनपढ़ आबादी को, जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि पैदा होने वाला जो संतान है वो बेटा होगा या बेटी होगी, ये तय करता है पिता। पिता का क्रोमोसोम ये तय करता है। अब आप एक्स वाई समझाएंगे और एक्स एक्स समझाएंगे तो वो अनपढ़ आदमी नहीं समझेगा। तो आपको उसके स्तर में, उसकी भाषा में उतरना पड़ेगा। हमारे एक मित्र कोई एनजीओ संचालक हैं, उन्होंने जब अनपढ़ आबादी को एक्स वाई क्रोमोसोम समझाया, तो एक्स और वाई का नाम उन्होंने दिया टी और टा, और एक्स का नाम दिया उन्होंने पे और पे। तो जब मदर के बे से पुरुष का टी मिलेगा तो बेटी पैदा होगी, और जब टा मिलेगा तो बेटा पैदा होगा। तो क्रोमोसोम को उन्होंने ऐसे समझाया। तो आपको उस स्तर पे उतरना पड़ेगा। आपका कंटेंट जो है, क्या वो आपके ऑडियंस के लिहाज से एप्लीकेबल है, ऑडियंस उसको समझ पाएगा? ये बहुत बड़ी चुनौती आती है, और मैं यहाँ पर विज्ञान प्रसार में पिछले 17 सालों से इससे जूझ रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास जो लिखने वाले होते हैं वो होते हैं प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, आप एकेडमिशियंस, और बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत जटिल और बहुत दुरूह हो जाते हैं। तो जब मैं पूछता हूँ कि भाई आपने ये फीचर, आपने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लिखी है, या आपने ये आर्टिकल लिखा है, फीचर लिखा है, इसकी भाषा तो बहुत जटिल है, तो जवाब मिलता है नहीं, मैं तो सर बहुत टफ लिखता हूँ, मैं तो यही जटिल ही लिखता हूँ। तो सर ये जटिल आप किसके लिए लिखते हैं, तो समझाना चाहते हैं आप? जब मैं पूछता हूँ तो जवाब मिलता है, अब ये तो मुझे पता नहीं। अरे भाई, आपको जब यही नहीं पता कि आप किसके लिए लिखना चाहते हैं, तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों अपने आर्टिकल भेज रहे हैं? तो हम कंटेंट, व्हाट आर द इश्यूज एंड कंटेंट दैट नीड टू बी कम्युनिकेटेड, जरूरी है। आपका टारगेट ऑडियंस कौन, और हमने को सूचना करते हैं। आप जब इंफॉर्मेशन देंगे लोगों को, तो उनका बिहेवियर और एटीट्यूड भी चेंज हो सकता है।
or do we want to engage our target group with two-way communication or simple मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो और उसको फॉलो करो। ये वाली अथॉरिटेटिव एटीट्यूड से हमें बचना है, खासतौर पर साइंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में, अपने सब्जेक्ट के कम्युनिकेशन में, और उनका फीडबैक लेना है। हमारे कम्युनिकेशन गोल क्लियर, रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फिल्मों से जुड़ा एक मैं कम्युनिकेटर हूँ, साइंस कम्युनिकेटर हूँ, और हम जब साइंस फिल्मों की बात करते हैं तो हमें इन विषयों से दो चार होना पड़ता है। और हम इवन मोर इम्पोर्टेंट, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, नो द टारगेट ऑडियंस। बहुत जरूरी है अपने ऑडियंस को पहचानना। डायल्यूशन विदाउट डिस्टॉर्शन, जहां तक साइंस में कोई भी टेक्निकल टर्म है, शब्दावली है, उसको आपको आसान शब्दों में, समझने लायक भाषा में बताना है, समझाना है। डेविड एटनबरो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर, आप इनको जरूर देखें यूट्यूब में, गूगल में। एलिमेंट्स सच एज रियलनेस, सरप्राइज, एवरीडे एक्सपीरियंस, सिंप्लीफिकेशन हेल्प टू मेक द फिल्म मोर रिलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग इफ दिस सपोर्ट द सेंट्रल आइडिया। अब इनका ये कहना है कि अगर फिल्म जो है वो सिंप्लीफिकेशन है, उसमें रियलनेस है, सरप्राइज है और दिनचर्या के उसमें अनुभव हैं, तो ये सारे एलिमेंट जो है वो आपके फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाएंगे अगर वो उसके सेंट्रल आइडिया से जुड़े हैं। और आपका स्क्रिप्ट में, साइंस की स्क्रिप्ट में कुछ टेक होम मैसेज भी होने चाहिए। शुरुआत में हो सकते हैं, आखिर में हो सकते हैं और बीच में भी हो सकते हैं। तो ये सारे मैसेज लोग याद रखते हैं, बहुत बहुत ज्यादा ना हो भरमार, लेकिन कुछ मैसेज हो सकते हैं। और आप जब अपने साइंस के मैसेज को फिल्म में दिखाते हैं तो आप देखें, जो आपने फिल्म देखी सेविंग द सेवियर, तो उसमें एकदम से आपको शुरुआत में कोई बहुत सारे फैक्ट फिगर नहीं, वो बाद में आए। पहले ह्यूमन एंगल स्टोरी आई, कहानी आई, फिगर्स उसके बाद में आए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर आप फिल्म देखते भी हैं और फिल्म अगर बनाना भी चाहते हैं, स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम इन विज्ञान प्रसार। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा लगेगा हमको। ये कुछ चीजें हैं जो र्यूमर्स हैं समाज में। एटॉमिक पावर प्लांट से जहरीली गैसें निकलती हैं, जबकि एटॉमिक पावर प्लांट से केवल वाटर वेपर निकलता है। जब नाभिकीय बिजली बनती है, परमाणु बिजली घर में, तो उसमें इतना गर्मी निकलती है, उसको पानी से ठंडा करते हैं और वाटर वेपर्स निकलते हैं केवल, नो टॉक्सिक गैसेस। आपका विजुअल कितने रिच हैं, आपके टाइटल कितना अच्छा है, लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो आपके प्लैनेट के लंग्स हैं। इस तरह से आप तुलना कर सकते हैं और आपके जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो समझ में आने लायक होने चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो मैं बहुत ज्यादा इसमें विस्तार में ना जाते हुए, कुछ टेक्निकल टर्म है, जैसे रेन शेडो है, पहाड़ के एक तरफ गर्म हवा है, बारिश हो रही है, दूसरी तरफ ड्राई एयर है, तो ये फिनोमेना रेन शेडो कहलाता है। तो आप जब अगर कोई चीज लिख रहे हैं और वहां पर ये आता है तो आप इसको समझाएं, आसान शब्दों में उसको बताएं। डॉल्फिन जो है वो सोनार नेविगेशन करती है, आप देखेंगे गूगल में, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो अब आप डॉल्फिन पे काम कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, लिख रहे हैं, उसकी इस बारीकी को समझाएं कि उसने एक कुदरती क्षमता है कि वो अपनी इको को पकड़ने के लिए छलांग मारती है। तो ये इस तरह की चीजें, एक्लिप्स में ये टाइम लैप्स इमेज फोटोग्राफी सिस्टम, समय समय पर अंतराल के बाद फोटोग्राफी होती है एक्लिप्स की, उसके कैसे फोटोग्राफी होती है वो भी आपका ऑडियंस जानना चाहेगा। और अनुवाद, आप जब फिल्म बना रहे हैं, रेडियो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, बहुत सारे अनुवाद आप करते हैं, उसमें गलतियां हो सकती हैं। सॉल्ट टॉक्स रिज्यूम, ये नमक वार्ताएं नहीं है, ये सॉल्ट टॉक्स हैं। 20th सेंचुरी फॉक्स ये 20वीं सदी की लोमड़ी नहीं है, जैसे प्रोडक्शन हाउस। तो ऐसे गलतियां की गई हैं डिस्कवरी चैनल में। मुझे याद है कि 20 साल पहले जब मैं जुड़ा था उनसे, तो ये सारी स्क्रिप्ट में गलतियां मैंने वहां पर देखी थी। ब्लाइंड लॉज, अंधे कानून नहीं है, प्रकृति के नियम है। न्यूक्लियर रिएक्टर पुनः अभिनेता नहीं है, रिएक्टर इज नॉट ए पुनः अभिनेता। संयंत्र नाभिकीय संयंत्र है। चिकपी चना है, चूजे के खाने योग्य नहीं है। पिजन पी कबूतर के खाने योग्य नहीं है, ये मटर है। तो ऐसी गलतियां हमारे लोग करते हैं। सऊदी बम विस्फोट में 5 अरबी नागरिक मारे गए या 5 अरब मारे गए। तो यहाँ पर तो ये सारी चीजें मैं क्वेश्चन लेने से पहले मैं कुछ और आपको फिल्में दिखाना चाहूंगा और ये जरूर बताना चाहूंगा कि ऐसे भी लोग हैं, बहुत जुनूनी लोग हैं जो अपना तन मन धन से फिल्में बना रहे हैं और बहुत बहुत बेहतरीन फिल्में हैं जिनको देखा जाना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं एक ऐसी फिल्म दिखाना चाहूंगा क्योंकि आप सब टीचर्स हैं। एक कोलकाता में टीचर हैं और वो अभी हाल ही में रिटायर हुई हैं, सुभा दास मलिक जी, जो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटर हैं और कम्युनिकेटर हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई जो मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा और उसके बाद हम आपके सवालों के जवाब देंगे। ये एक जस्ट आई एम शेयरिंग ए फिल्म ऑन अवार्ड विनिंग फिल्म है जो हमारे पिछले फेस्टिवल्स में जिसको अवार्ड मिला था। जस्ट ए मिनट।
ऑडियो आपको सुनाई पड़ रहा है? Yes, sir, audio. सर ऑडियो सुनाई पड़ रहा है, वीडियो नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस फोल्डर को मिनिमाइज कर दीजिए एंड वीडियो ऑन करके फिर स्क्रीन शेयर करिए। अच्छा, जस्ट आप ठीक है? यस सर, बढ़िया। ये फिल्म एक टीचर ने बनाई है जो कोलकाता में रहती हैं, मैडम सुब्बा दास मलिक, जो मास कम्युनिकेशन और साइंस जिन्होंने पढ़ाया है पूरी जिंदगी। तो ये मैं आपको फिल्म दिखा रहा हूँ। At the International Exhibition in London in 1862, an inventor named Alexander Parkes had taken up a stall. Here, he displayed a new material he had synthesized from organic compounds. He called it Parkesine. The material was lightweight yet hard. It promised to be durable. It had a great future. Soon, it replaced ivory on the billiard table. It was destined to replace many other material in everyday use. Our use of plastic starts from in the very morning when we use the toothbrush, and that continues for the entire day, because it is light, it is durable, and it is water resistant, and it is not readily decomposable. Plastic is a type of a polymer. The simplest polymer is like polythene or polyethylene, right? So that is built from ethylene. So ethylene is basically two carbon connected by a double bond, and there are 4 hydrogen atoms connected to those carbons. Now when you open up this double bond, your carbon is expanding its valency, so it is connected to more carbon, right? And it can propagate, it can continue the length of this chain. Now when you have like say 10,000 of these carbon atoms connected, or 10,000 units connected together, we get a polymer, which is polyethylene. Within decades of its invention, the Parkesine family increased in variety. Variations in the ethylene structure yielded polymers with widely different properties. The polymers were put to diverse use. The synthetic fiber viscose rayon catalyzed new fashion statements. Shellac record discs were replaced by lighter and less brittle vinyl records. Celluloid revolutionized the way we preserved our memories for posterity, and the way entertainment was packaged for the masses. Depending on different types of application, then we started developing different units, right? So say if you put a chlorine atom with that CH2CH2, it becomes vinyl chloride, and we make PVC out of it, polyvinyl chloride. All our pipes, all these pipes are made out of PVC.
Then there are ethylene can be now classified in different types. You can have low density polyethylene, which is LDPE. Then if you were making a high density polyethylene, which is HDPE, then there is polypropylene. Plastics are cheap, light, durable, and everlasting. PP, PET, LDPE and HDPE revolutionized the packaging industry. So depending on our application purposes, we are making different types of plastic materials. The most commonly used material that we are using in everyday life, like your carry pack and all those things, those are typically polyethylene based polymers. And then if you look at like plastic bottles which are transparent, sometimes polycarbonate is there, and polypropylene is there, and these are all typically thermoplastic materials. Soon, there were plastics everywhere that refused to decay, that refused to break down into its elements. The boon of the 20th century became a bane of the 21st century. পাতলা প্লাস্টিকটা তো ভীষণ ভীষণ রকমের সমস্যা, তো ওটা নিয়ে খুবই চিন্তার ব্যাপার। ওটা উড়ে উড়ে গিয়ে আপনার এই নালার মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে। তারপরে এই আমরা অনেক সময় বেশিরভাগ যেটা প্রত্যেক বাড়িতে আমরা জানলেও সবই জানি তাও করি, সেটা হচ্ছে এঁটো কাটা সব কিছু নিয়ে প্লাস্টিকের মধ্যে করে তারপরে ফেলি। এখন ওর মধ্যে অনেক সময় বাসি খাবারও থাকে, সেই খাবার যখন আমরা ডাস্টবিনে ফেলছি সেখানে গরু বা কুকুর টুকুর ওরা খাচ্ছে। এখন তো মানে এটা একটা বিরাট সমস্যা, ওদের পেটের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তো বিরাট বিপত্তি করছে। এবং এই প্লাস্টিক নদী নালা দিয়ে উড়ে গিয়ে সমুদ্রে বিশাল ক্ষতি হচ্ছে। এই সমস্ত কচ্ছপ যারা আছে, সামুদ্রিক কচ্ছপ, ওরা তো বুঝতে পারছে না, ভাবছে জেলিফিশ করে খেয়ে ফেলছে। এরকম সামুদ্রিক কচ্ছপ এবং আরও অন্যান্য পাখি ইত্যাদি বিরাট একটা পলিউশন তৈরি হচ্ছে এই প্লাস্টিক থেকে। Cities, particularly metropolitan cities, the sewer systems are being choked. হঠাৎ একদিন মাথায় এলো, আমরা যে স্টাফ টয় বানাই ওর মধ্যে তো আমরা ঠেসে ঠেসে তুলো ভরি, সেখানে যদি তুলো না ভরে এই নরম এই পাতলা প্লাস্টিকগুলো ঠেসে ঠেসে দিয়ে যদি কিছু বানাই, তো তারপরে করতে করতে গিয়ে দেখি বাহ বেশ সুন্দর মেটেরিয়াল তৈরি হচ্ছে। আমরা প্লাস্টিক দিয়ে কিছু স্টাফ টয় অনেক তৈরি করে ঘরটা সাজিয়ে রাখলাম, সেটা বেশ কিছুদিন তো থাকবে, তারপরে যখন অনেক জমে গেল তখন সেটাকে নিয়ে আমরা তা রিসাইক্লিংয়ের জন্য একটা ব্যবস্থা করি বা খবর দিয়ে সেটা করতেই পারি। এইভাবে আমরা যদি সকলেই একটু একটু ভাবি তাহলে নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কিছুটা হলেও এই বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার একটা স্টেপ এগোবো। আমরা একটা সাংঘাতিক মানে প্লাস্টিক পলিউশনটা যে কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে আমরা জেনে বুঝেও কিন্তু সেটা নিয়ে কিচ্ছু করছি না। Now
basically have research and recycles into use technology which is called fusion technology. Okay. 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 After the first part of the recycling process, that is the collection that we can see here in these two sacks, we go into the third part, that is the segregation. We get plastics in various qualities, in various conditions. So what we have to do is we have the boys to bring in these plastics, then they put it into various sacks. We can see here is the bun wrappers, the white polys and the black polys. This is the type of plastic. This is PP. This is poly white. This is LDP. It's a soft. This is again less than 40 microns. This is available. This is HDP, and these are laminates. Now, possibly many of you are not aware that all these products are basically have been banned, and they are actually illegal. The food chain. There are other ways in which plastic may end up on our food plates. Many a bottle carelessly tossed away finds its way to the ocean. More than 50% of the plastic that we throw away ends up in the ocean. The Great Pacific Garbage Patch is a floating island of plastic swirling in the North Pacific Ocean. The plastic debris floating in the oceans for decades and exposed to the relentless sun become brittle and break up into tiny fragments of the size of micrometers. These tiny bits of plastic, invisible to the naked eye, are consumed by the fish and other marine animals. These lodge in the flesh of the fish and thus enter the food chain. The way we are living, I often say that we are living dangerously. We are virtually mortgaging the future generations for the interest of the present generation. We read, but we don't do it. Neither we do others doing it, nor we do it ourselves. What do we read? We read that segregation is important. Why is segregation important? It is important because the segregated waste can be recycled. And if we don't segregate, the soil gets polluted and mixed waste is mixed. 1 decade, we have used or consumed more plastic than what we used or consumed during preceding centuries. So, if we agree that we can't go without plastic, it needs to be recycled. It can be reused for many purposes. We need to reduce, reuse and recycle plastics. I never say that we should go without plastic. What I say, we should go about single-use plastic which has a thickness of less than 50 microns. HDP together. We have used a simple technology. We have used heat and temperature, where we have molded this into. We can mold it into whatever designs you require. Now, if you look at this very minutely, you will see that this is laminates inside here. Okay, these are laminates, and there are laminates here too. There is white poly,
blue poly and they are black polys inside. This is what you will see. So finally what has happened is that we are able to now take the manufacturing to another level of eradicating or recycling these laminates with these plastics and make them again into useful products. Builders have been successful in creating building material from plastic waste. Material which are difficult to recycle, like Tetra Pak, which has got paper, plastic as well as metallized sheets. Now the paper will not allow you to recycle plastic, the plastic will not allow you to recycle paper, and the metal will not allow you to recycle either of them. So therefore, how do you recycle? So this is a very better method. You pulverize it and use compression molding system and you make sheets. I set up a plant of plastic recycling in Falta. We had a very big challenge because the plastic which was coming for recycling had portions of plastic which was with paper. You know, there was and this was to create problem when you recycle. This kind of plastic, which was partly plastic paper, cannot be recycled in a conventional way. So there was a huge waste of this kind of plastic, and which the only alternative was to burn it. So they were burning it in incinerator, which was creating a lot of air pollution, and it was a very big fire hazard because there was a huge amount of plastic lying, and if you're burning plastic, there was a fire hazard was there. So the Development Commissioner told me that, you know, find some solution. So what we did was we developed a technology of using the paper as a which was normally in all physical properties was much better than all other materials. 100, and when these plastics are utilized there in the clinker, this plastic when transforms ketone compounds, and that compounds are very carcinogenic, but below 900 temperature, if it is burnt, it is high, polluting the atmosphere, and there internet problem. So now am I audible? Yes, sir. You're audible, sir. या एक्चुअली कुछ इंटरनेट इशू था तो वो पूरी फिल्म नहीं हो पाई. तो खैर अभी मैं इन दो फिल्मों के साथ मुझे लगता है कि अभी समय भी 10 मिनट का बचा है. तो अगर हम ये 10 मिनट कुछ डिस्कशन में निकालें और आपके सवाल मेरे पास हम लोग बातचीत कर सकें,
और दूसरी चीज यहाँ पर नटशेल में जो हम यही कहूँगा टू सम अप एज कंक्लूजन कि हम इन फिल्मों के जरिए बहुत बड़े नंबर में फिल्में हैं हमारे पास, देश में हैं, दुनिया में हैं, यूट्यूब में हैं, पब्लिक एक्सेस में भी बहुत सारे जगहों पर ये फिल्में आपको मिलेंगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक साइंस फिल्म का कल्चर देश में डेवलप हो, एंड क्योंकि इन फिल्मों में न केवल स्टोरी टेलिंग, ह्यूमन एंगल और एक सीधे सोसाइटी इफेक्टिव कोई मीडियम मुझे नहीं लगता। तो इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं टू डेवलप दिस कल्चर ऑफ साइंस फिल्म। उसके लिए वी आर प्लानिंग सम वेरी एंटरटेनिंग साइंस फिल्म एप्रिसिएशन कोर्सेज जो 1 हफ्ते के होंगे, 10 दिन के होंगे, जिसमें 2 से 3 घंटे डेली फिल्में दिखाई जाएंगी। अलग अलग फिल्म मेकर से इंटरेक्शन होगा। बहुत बेहतरीन फिल्म मेकर्स हैं हमारे पास जिनकी फिल्में, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास समय केवल 1.5 घंटे का है, तो हर चीज यहाँ पर बता पाना या शेयर कर पाना संभव नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने पूरी लाइफ लगा दी है और ऐसी फिल्में बनाई हैं जो आप 20 मिनट कहाँ जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। ये 2 फिल्में मैंने कुछ खास मकसद से यहाँ पे दिखाई। पहला आपको स्टोरी टेलिंग, साइंस कम्युनिकेशन थ्रू स्टोरी टेलिंग, जिसमें वो लेक और उस झील का जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं। और दूसरा जो फिल्म थी वो एक वेल रिसर्च फिल्म थी जो प्लास्टिक पॉलिथीन पे थी, जिसमें शुभा दास मलिक जी ने कोलकाता में रहते हुए उस फिल्म के प्रॉब्लम को उठाया और उसके सॉल्यूशन तक वो पहुंची। उन्होंने इसके जो भी सॉल्यूशन पॉसिबल हैं उसको बताया। तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन रिसर्च ओरिएंटेड फिल्म थी जो यहाँ पर मैंने आपको ये 2 फिल्में दिखाई, जिसमें एक फिल्म मेकर था जो जलालुद्दीन बाबा हैं, जो कश्मीर में रहते हैं, जो साइंटिस्ट नहीं है, जो टीचर नहीं है, एक गुरिल्ला फिल्म मेकर हैं, 1 मैन आर्मी है, जो स्क्रिप्टिंग टू एडिटिंग सब कुछ खुद करते हैं। दूसरी शुभा दास मलिक हैं, जो एक रिटायर्ड टीचर हैं, मास कम्युनिकेटर हैं। उनको पता है कि एक वेल रिसर्च फिल्म साइंस को कैसे कम्युनिकेट करना है, जिसमें 7 Ws और 1 H होने चाहिए, फैक्ट फिगर्स होने चाहिए, तो सीधे समाज पर इसका असर होता है। यहाँ पर एक बात मैं अपनी और बताना चाहूंगा और ये कह के मैं बात खत्म करूंगा। हमको एक दूसरे को समझने का, उसको उसकी सलाहियत और राइटिंग की जो बात कर रहे हैं थ्रू मैं TII के ग्रेजुएट, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, उनका एक बच्चा जो पास आउट हुआ, उसने एक फिल्म बनाई और हमारे फेस्टिवल में भेजी। वो फिल्म हम प्रीव्यू कर रहे थे तो उसमें कुछ साइंटिस्ट बैठे हुए थे। जब फिल्म शुरू हुई तो उस फिल्म में एक ड्रामा था, एक परिवार था, उसमें उनके मेंबर्स थे और कोई फैमिली, कोई स्टोरी लाइन मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, लेकिन वो साइंटिस्ट ने एकदम से टिप्पणी करी, भाई इस फिल्म में साइंस क्या है। लेकिन जब 10-15 मिनट के बाद उसमें ये दिखाया गया कि वो घर, और सुबह उस घर के 4 मेंबर्स मरे हुए पाए गए, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड फैली, कहीं भी ऑक्सीजन का सोर्स नहीं था। एक बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्म थी वो, फिक्शन या डॉकू ड्रामा कह लें, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, और ये हर जाड़े में खबर आती है कि इस घर में अंगीठी जल रही थी और घर के मेंबर्स मरे हुए पाए गए सुबह। बहुत बेहतरीन तरीके से उठाया। तो फिल्म मेकर्स जो हमारे साथ उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, और फिर जो साइंटिस्ट फिल्म खत्म हुई तो उनको भी लगा कि हाँ ये वाकई बहुत बेहतरीन साइंस कम्युनिकेशन है इस फिल्म में, जिसमें ड्रामा भी था, जिसमें फैक्ट फिगर्स भी थे और जिसमें टेक होम मैसेज भी था। तो प्लास्टिक की बात हम करें तो मुझे याद आता है हर चौराहे पर हमारा गार्ड भाई और हमारे और हम लोग भी कभी कभी वो गर्म चाय जो होती है ना, जैसे ही गर्म में या प्लास्टिक की पन्नी में जाता है तो उसके जो नैनो पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के, वो उसमें तुरंत आ जाते हैं और वो एक जहर बन जाता है, और आने वाले समय में हमारा DNA तक उससे इफेक्ट होगा।
ये लोग कह रहे हैं। तो कुछ समय है हमारे पास, अगर हम आपके सवाल ले पाएं और उनके कुछ डिस्कशन कर पाएं तो मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका। Hello. Sir, we can take 1 or 2 questions if it's fine. जी जी, एक क्वेश्चन था सर, that even today in science-based films like Mission Mangal or Parmanu are less accepted by the audience than commercial films like Free and Boot, which are totally based on superstitions. So, don't you think this indicates a basic trend of the mass, which still gives more importance to superstitious stigmas than the science? Sir, was my question clear? सर आपकी ऑडियो क्लियर नहीं पहुंच रही मेरे Can I just Yeah, Mubin ma'am, please. मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है। सर एक्चुअली हमारे देश में क्या है सर, साइंस फिक्शन और बॉलीवुड में साइंस अभी सही तरीके से पहुंच नहीं पाया है। उसका कारण क्या है? अभी हम लोग रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सर। हमारे देश में जिस दिन भूख मिट गई, जिस दिन सबको रोटी नसीब हो गई, तब हम केक खाने की तरफ जाएंगे। केक और पेस्ट्री की बात हम जब करते हैं ना सर, तब वो साइंस फिक्शन की बात जैसी होती है। मतलब जो हम साइंस फिक्शन या बॉलीवुड में साइंस की हम बात करेंगे तो वो केक और पेस्ट्री है सर। अभी हम रोजी रोटी की लड़ाई कर रहे हैं सर इंडिया में। तो हमारा जो ऑडियंस है ना, वो थका हारा जब जाता है ना शाम को, तो उसको कुछ मनोरंजन चाहिए होता है, डांस चाहिए होता है। वो साइंस फिक्शन देखने के लिए 100 रुपए खर्च नहीं करेगा। वो जब थका हारा अपने पूरा दिन बिताने के बाद उसको नाच गाना चाहिए होता है। उसको परमाणु और पोखरण और मिशन मंगल नहीं चाहिए होता। तो ये एक समस्या है सर देश में। तो अभी ऑडियंस को हम थोड़ी भूख मिट जाए, रोटी सबके पास अच्छे से पहुंच जाए, तब हम केक और पेस्ट्री की बात करेंगे। उसके लिए भी समय लगेगा मुझे लगता है। Shankar sir, is your audio clear? Can you? Yes, ma'am. My audio is clear. Are you able to hear me? Can you hear him, Nimesh ji? Can you hear Shankar sir? जी जी। Please, Shankar ji, go ahead. Thank you, ma'am. Sir, the next question was by Mubin ma'am herself. The question is, auxiliary or ancillary sciences help in understanding social sciences subjects. Sir, what is your opinion on enhancing scientific temper in teaching learning methods in present scenarios? Did you get the question, Nimesh ji? आपको मैं 2-3 चीज जी मुझे एक बार क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे सर? या ये क्वेश्चन का जिस्ट मैं आपको बता देती हूँ। हाउ डू यू एनहांस साइंटिफिक टेम्पर इन प्रेजेंट सिनेरियो इन टीचिंग लर्निंग मेथड? दैट्स द या जी एक्सीलेंट क्वेश्चन सर। टीचिंग लर्निंग मेथड में what is new education policy, you know all that things. Whatever our government make it, you know, to beautify it and to break the walls पड़ेगा, तो वो मैथ नहीं पढ़ सकता। कोई फिजिक्स पढ़ेगा तो वो कॉमर्स नहीं पढ़ सकता। अब वो सारी दीवारें टूट गई हैं, टूटने वाली हैं। तो आपने जो पूछा हम इनोवेशन कैसे अपने बच्चे की पढ़ाई में मर्ज करें, तो यहाँ पर सर मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन एक जैसे नेशनल मूवमेंट के तौर पे सामने नहीं आ पा रहे। जब हमारे देश में केबल टीवी नहीं था, गूगल नहीं था, 80 के दशक में आपको याद होगा प्रोफेसर यशपाल और उनके पहले के भी समय में 2 बहुत बड़े जत्थे निकले थे, भारत ज्ञान विज्ञान जत्था और भारत जन ज्ञान विज्ञान जत्था, ड्यूरिंग अर्ली 80s तो और सम मिड 80s। तो उस जत्थे में पूरे देश में एक साइंटिफिक टेम्पर की लहर पैदा हो गई थी और जगह जगह पर लोग पोस्टर्स, चार्ट्स, नुक्कड़ नाटक, स्लोगन, विज्ञान की कविताएं, विज्ञान की नौटंकी, विज्ञान के नाटक इत्यादि इत्यादि के साथ में देश में साइंटिफिक टेम्पर का सवाल किया
कि हम अपने बच्चों की एजुकेट कैसे करें, इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग कैसे करें। गवर्नमेंट बॉडी काम कर रही है, जैसे एनसीईआरटी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। एनसीईआरटी हमारे देश के एजुकेशन स्कूल एजुकेशन को चलाता है। एनसीईआरटी में बहुत सारे लैब्स बनाए गए हैं। प्रोफेसर हुकुम सिंह बैठा हूँ, 24 घंटे आप मुझे फोन करें, आई एम रेडी विद दैट टू एस्टैब्लिश योर सेंटर. Or being a science communication teacher, I wish to work on it more, as it is not only the need of our, but a necessity to know science for a layman. Dr. Rashi Mishra, thank you Rashi for this wonderful suggestion. बल्कि हम हर एक मीडिया स्कूल में यूनिवर्सिटीज में ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने आप एक साइंस कम्युनिकेशन का सेंटर एस्टेब्लिश करें. रिसोर्सेज हमारे पास हैं, कॉन्टैक्ट हमारे पास हैं, एक्सपर्टाइज हमारे पास है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास बच्चे हैं, टीचर्स हैं, तो क्यों नहीं हम इसको शुरू कर सकते हैं? व्हाई नॉट? हम कर सकते हैं इसको शुरू और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं. जी 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 शुक्रिया निमिष जी. डॉक्टर शंकर, आई थिंक आई विल इनवाइट यू फॉर द वोट ऑफ थैंक्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, Nimish sir, for a wonderful and informative session. The science documentary was, in fact, indeed eye-opening, and as a viewer as well as a participant. Your presentation also, sir, on the science documentation is definitely an asset for media persons, scientists, journalists, and this information, like what you shared about 7 Ws and 1 H, will be surely helpful for deciphering the science fundamentals for all the basic layman viewer. And I again thank you, sir, for this wonderful session, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you for patient listening.